Assalamu alaikum. I'm hopeful all of you are fine and with good health. Now, this short presentation is about the final project presentation assignment. Uh, Now, let's first discuss the importance of this presentation assignment. Officially, the total marks of this assignment are 20. So this is a big weightage. So this assignment is very important for you. Those who want to improve the grades, now this assignment can be helpful to upload your your grades. Now the official marks are 20, but I will also I can add some more marks to it, like your presentation and class participation marks are 10. So out of 10, I may include further 5 marks to it. So basically, this presentation weightage you had, that is almost 1/4 of your whole of the total marks. So that is the importance of this final presentation. For you people like management science students, the presentation is so important, but unfortunately we cannot have face-to-face presentations in campus due to this COVID situation. But again, for this online presentation, you'll have to work very hard. I will guide you, and as well as I think I gave you a session about the presentation, that how to give the presentation. If I haven't given, so you should remind me. I can further guide you that how to give the good presentations, what are the important things which should be considered while this type of formal presentation. So the total marks, estimated marks, will be 20 to 50% of your whole of the total marks. So I think you should give due focus to this particular presentation assignment. I have already shared the group composition for the different topics, and this is a different composition. In some groups there are 3 to 4 students, in some groups there is only 1 student. But while presenting your topics, you should always keep in mind that it will be the individual performance as well as the overall group performance which is important. Both should be keep in mind. I will evaluate both the individual performance as well as the group performance. ऐसा ना हो कि ग्रुप का एक जो मेंबर है वो सारा काम कर रहा हो और बाकी लोग आराम कर रहे हो, तो उनको फिर आराम करने वालों को कोई नंबर नहीं मिलेगा. इसकी जो है क्वेश्चन आंसर सेशन होगा फ्रॉम ईच मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. सो you should prepare your presentation topics carefully. Again, these are the theoretical sort of topics, because again, due to the COVID situation, it was not possible to give you some practical assignment, including different surveys to the different organizations and projects. But these books are important because both of these books are based on the HR based project management. So basically 2 chapters of 1 chapter each from the different book is assigned to each of the group. So there will be 2 parts of your presentations. 1 chapter from the one book, and the second chapter will be from the other book. So this is the group participants, and I've already shared the composition of the different groups. Now, these are the other groups. Okay, the 2 books I was talking about. The first book is the Human Resource Management in Project-Based Organizations, the HR Coordinate Framework, and the second book is Advancing Human Resource Project Management. So almost to all the groups, 1 chapter from each of these books is being assigned. Now these are the groups 9, 10, 11 and 12. These are the other 4 groups. So there are 16 different groups which have been assigned different topics. Let's discuss how to prepare for the project assignment and your presentations. Again, I am repeating that this assignment,
these presentations have the major part of your weightage out of your total marks, so you'll have to be well prepared for these presentations. Now what you should do, you should divide the different topics from the different chapters among the different groups. इसको you'll have to carefully go through each of these books. You'll have to prepare the slides. इसकी slides बनाएं. स्लाइड्स प्रिपरेशन भी बिल्कुल फॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए. उनकी जो कलर उसमें जो आप देंगे वो उसका फ़ॉन्ट क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स. तो स्लाइड्स आपने मैं भी आपको फॉर्मली इसकी इंस्ट्रक्शन में भी बता देता हूँ. रफली आई थिंक 20 to 25 स्लाइड्स विल बी एनफ फ्रॉम ईच चैप्टर, दैट इज़ फ्रॉम सिंगल टॉपिक. तो ये अपने प्रेजेंटेशन उसकी स्लाइड्स अच्छी तरीके से बनानी है, फिर उसकी प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट करना है कि वो पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाए. बस जस्ट लाइक यू शुड थिंक दैट यू आर गिविंग द लेक्चर एंड उसको पूरा अपने अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को कवर करना है और उसको प्रेजेंट करना है. Now let me formally tell you about the instructions for these presentations. Keeping in view the current crisis and lockdown situation, it is not recommended by university to assign some practical project involving surveys, visiting projects. The following theoretical projects are therefore assigned. Now what you'll have to do, you'll have to carefully go through the assigned topics, discuss with your group members and try to resolve the issue which are not clear. If still not clear, clarify after discussing with your teacher. Now जब भी आपकी प्रेजेंटेशन का जो डेट होगी उससे पहले पहले आपने जो है जो भी अगर प्रॉब्लम है कोई या कोई टॉपिक इसमें क्लियर नहीं हो रहा तो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है उससे पहले, ठीक है. Prepare slides generally 20 to 25 per topic in a professional manner with careful color combination and themes. 80% material of slides should be from the assigned topics of book chapters. 20% optionally can be included from the outside other than assigned books with proper reference given in the slides. इसमें कोशिश करें कि जो आपको चैप्टर दिए गए हैं 80% जो आप मटेरियल लेंगे स्लाइड्स का, पावर पॉइंट स्लाइड्स का, वो आप उन्हीं चैप्टर से लेंगे. ऑप्शनली अगर आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो 15 to 20% आप अदर टॉपिक्स, रेलिवेंट टॉपिक्स जो आपके हैं जो अदर देन दिस बुक जो असाइन बुक्स हैं उसके अलावा अगर देना चाह रहे हैं तो यू कैन इंक्लूड दोज टॉपिक्स एज वेल. और अगर बाहर से किसी और बुक से या किसी और इंटरनेट सोर्स से दे रहे हैं तो कोशिश करें स्लाइड्स में उसका रेफरेंस भी दे दें. ट्राई टू इंक्लूड 2 to 3 स्लाइड्स रेफरिंग सम प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू योर टॉपिक विच हैज़ इम्प्लीमेंटेड द स्ट्रेटजीज और एनीथिंग इंक्लूडेड इन योर असाइन टॉपिक विद ड्यू रेफरेंस. इसमें वैसे तो ये थ्योरेटिकल असाइनमेंट है लेकिन बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल अगर कोई एक्सपीरियंस है आपका या और कोई ऐसा प्रैक्टिकल आपको कोई ऐसा सिनारियो हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अगर इंक्लूड करेंगे तो डेट विल बी द प्लस पॉइंट. यानी वो जो असाइंड टॉपिक्स हैं आपने प्रैक्टिकली बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो रही है. डेट में बी दी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोजेक्ट्स, तो डेट विल बी अ प्लस पॉइंट बट डेट इज़ नॉट मैंडेटरी नहीं है ये. Prepare a presentation of 20 to 25 minutes covering all the aspects of topic. Every group member should properly allocate the relevant portion for presentation. Now इसमें फाइनली जब आप ये सारा तैयार कर लेंगे, अपनी पावर पॉइंट स्लाइड बना लेंगे, तब आपने इसकी जो है 20 to 25 मिनट्स की प्रेजेंटेशन है, मतलब आधे घंटे से कोशिश करें कि मिनिमम 20 मिनट्स हो और आधे घंटे से ज़्यादा ना हो. उसकी आपने फॉर्मल तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है. नाउ व्हाइल गिविंग द प्रेजेंटेशन यू शुड कीप इन माइंड एज यू आर गिविंग द प्रेजेंटेशन ऑन कैंपस. जो लाइव प्रेजेंटेशन है बस उसी को अपने माइंड करना है. फॉर एग्जांपल आपने फॉर्मल ड्रेस में आना है, फॉर्मल ड्रेस में इसको अगर आपकी रिकॉर्डिंग भी हुई तो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो प्रेजेंटेशन होगी. फॉर्मल ड्रेस में आए, जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर टाई लगा के कोशिश करें. अब अगर आपने कोई दूसरा ड्रेस भी है तो फॉर्मल ड्रेस हो. तो ये आपने नो इसके नंबर हैं बाकायदा, इसको यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दीज थिंग्स. अच्छा, बाकी जो प्रेजेंटेशन किस तरीके से देते हैं, आई थिंक मैंने आपको लेक्चर दिया था इसका. अगर नहीं दिया तो आप लोगों ने मुझे बताना है. इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास आई विल डिस्कस दैट हाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन और किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं फॉर्मली, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. और ज़ाहिर है उन्हीं पॉइंट्स की बेस में मैं इसको इवेलुएट भी करूँगा. So these formal presentations are really important for you people for this assignment as well as for your practical life and otherwise as well.
Okay, other instructions are that no individual or group will share copy material of one another, even if the topics are exactly same. This will be graded negatively. अगर आपके टॉपिक्स बिल्कुल सेम भी हैं तो कोशिश करें आप अपनी स्लाइड्स बनाएं और शेयर ना करें. Prepare at least 10 multiple choice questions with answers and one short question with answers out of your assigned topic. These questions should be prepared in word form. These questions will be shared among all the students in class, and there may be a quiz out of these questions. It may help you all to improve your grades in such one or two quizzes. ओके इसमें एक तो आपने इसका शॉर्ट क्विज भी बनाना है, मल्टीपल चॉइस भी होगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा. इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हो सकता है कि आपको मैं इनमें से जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उन्हीं में से आपको मैं दूंगा एज अ क्विज. नो इसकी एक पर्पस तो ये है कि यू कैन इम्प्रूव दी ग्रेड्स. ठीक है, इसमें इसी जो आप क्वेश्चंस देंगे डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के, उसी में से क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, तो उसकी ज़ाहिर ग्रेडिंग होगी. तो आपका जो एक तो 25 मार्क्स इसके हैं ना प्रेजेंटेशन के, अदर देन अगर क्विज भी इसमें से अगर इंक्लूड हुआ तो डेट विल बी हेल्पफुल टू इम्प्रूव योर ग्रेड. क्योंकि इसमें कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम मैं क्विज में जो आपके मैक्सिमम अच्छे क्विज हैं उनको मैं काउंट करूँ. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट. All the presentations, as I told you, should be formal. All the presenting students should be in formal dress during presentation, just like they give the presentations on campus. Each group will have to present their topics by hosting a live video session in Zoom with appropriate time, 20 to 25 minutes with video recording. Optionally, you can also manage to pre-record presentations either in Zoom or YouTube channel or any other suitable media and present recordings at the class time. The grades will be awarded on your individual as well as group efforts. Now इसमें let me discuss about the different options of the presentation. इनमें दो तीन options हैं आप लोगों के पास, इसको हम फाइनल कर लेंगे in the next coming session. एक तो ऑप्शन ये है कि if the university allowed, जो मुझे नहीं लगता कि अभी परमिशन मिलेगी कोविड सिचुएशन की वजह से, कोशिश तो हम ये करेंगे कि हम लाइव प्रेजेंटेशन हो फेस टू फेस ऑन कैंपस. ठीक है, जिसके चांस कम है वो एक दो दिन में मैं यूनिवर्सिटी से कंफर्म करके आपको बता दूंगा. दूसरी ऑप्शन ये है कि आप लोग जूम में लाइव प्रेजेंटेशन देंगे. दिस विल बी दी वीडियो प्रेजेंटेशन. वीडियो ऑन होगी, आपकी फॉर्मल ड्रेस में होना है और आपस में आप किसी के से आपका कोऑर्डिनेशन होगा, वो आप लोगों ने खुद डिज़ाइन करना है. लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जूम सेशन में कि अगर आपका इंटरनेट को कोई प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ग्रुप्स होंगे, अगर आप एक जगह नहीं भी हैं तो ज़ाहिर डिफरेंट लोकेशंस पे होंगे, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम हुई तो डेट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके नेगेटिव मार्किंग भी होगी उसकी, तो उसको थोड़ा सा केयरफुल करें. तीसरी ऑप्शन जो आई थिंक आई विल रिकमेंड इट बट इट्स अप टू यू. तीसरी ऑप्शन ये है कि आप कोई भी अच्छा मीडिया यूज़ करें, लाइक पावर पॉइंट स्लाइड में भी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसको ज़रा देख लें कि किसी किसी रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्ड कर लें. और उसमें थोड़ी सी आपके लिए आसानी ये है कि आप उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर सकते हैं अगर कोई गलती हो जाती है. तो ये ऑप्शन आप अच्छा, आपने किसी किसी अपना टाइम एलोकेट करना है, एक दूसरे का किसने कितना प्रेजेंट करना है वो आप लोगों ने एज अ ग्रुप खुद डिसाइड करना है. तो बेसिकली हर ग्रुप की दो प्रेजेंटेशन होंगी, एक टॉपिक 1 से रिलेटेड होगी और एक टॉपिक 2 से रिलेटेड होगी. ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग रिकॉर्ड कर लें तो डेट विल बी बेटर. वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलवेज, ये थोड़ा सा नोट कर लें, वीडियो रिकॉर्डिंग है ये. लेकिन अगर कोई ऑप्शनली जूम पे लाइव प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी ठीक है. अगर कोई स्टूडेंट्स के आई थिंक कि अपने चैनल्स भी हैं, यूट्यूब चैनल, ठीक है, अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल से इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी ठीक है, वो भी डेट इज़ एक्सेप्टेबल. लेकिन उसमें कोशिश करें कि 80 to 100 जो हैं उनके सब्सक्राइबर्स हों, तो डेट विल बी बेटर. अदरवाइज वो जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का यूट्यूब चैनल है, उधर से फिर मैं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा. नो एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट नोट कर लें, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं शायद उनको आइडिया होगा, प्रेजेंटेशन एक तो दे रहा होता है ना, वो तो इम्पोर्टेंट वो तो होता है, जो सुन रहे होते हैं मेरे लिए उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. ईच प्रेजेंटेशन शुड बी लिसन टू एवरीवन इन द क्लास. ठीक है, एक जो इसका जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो एक सेपरेट सेशन होगा. उसमें एक तो प्रेजेंटर से मैं क्वेश्चन करूँगा, दूसरे जो सुनने वाले हैं उनसे भी क्वेश्चन होंगे उसी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इसके नंबर्स हैं, इसी की बेस पे आपको मैंने टोटल नंबर देने हैं. तो प्रेजेंटेशन देना जितना इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट इज एक मैनेजर के लिए लिसनिंग जो है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स उनको पता है कि मैं उनसे तो क्वेश्चन करता हूँ, जो आपकी ऑडियंस होती है उनसे भी मैंने क्वेश्चन करने हैं. तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है
कि केयरफुली लिसन टू ईच प्रेजेंटेशन, ठीक है, दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें, थोड़ा सा टाइम भी आपको शायद मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर इन द फॉर्म ऑफ क्विज करूँगा, या लाइव सेशन हमारा होगा जिसमें मैं उसकी ज़्यादा वेटेज होगी आउट ऑफ दिस 20 और 25 ओवरऑल मार्क्स। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फाइनल रिक्वायरमेंट्स है कि आपने पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है 20 to 25 स्लाइड्स फॉर ईच टॉपिक। मल्टीपल चॉइस का एक वर्ड फाइल होगी जिसके एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा विद आंसर, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस के आंसर्स हैं वो भी इसमें आपने इंक्लूड करने हैं। और दूसरी आपने प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है वो आपने देख लेना है। मीडिया अच्छा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर एडिटिंग करें क्योंकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के एक दो सीनियर मेंबर या लाइक एचओडी दूसरे लोग भी, उनको लोगों मैं इनवाइट करूं इन द लाइव स्ट्रीमिंग हु विल आल्सो लिसन टू योर प्रेजेंटेशंस। तो इस तरह से थोड़ा सा अगेन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसको आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है फॉर योर प्रेजेंटेशंस। अच्छा, असाइनमेंट की जो ड्यू डेट्स हैं इसकी कोई एक सिंगल डेडलाइन मैंने नहीं रखी, इसमें डिफरेंट लाइंस हैं। वैसे तो मैंने आपको आई थिंक 5 to 6 डेज बैक इन प्रेजेंटेशन टॉपिक्स का बता दिया था और आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। प्रेजेंटेशन जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी 6 जून 6 से हम स्टार्ट करेंगे। तो उस जून 6 को जो लोग ग्रुप्स प्रिपेयर्ड होंगे, वेल प्रिपेयर्ड होंगे, दे कैन गिव द प्रेजेंटेशंस, ठीक है। वो अपना अगर रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग सबमिट करवा दें। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग का फिर मैं आपको बताऊंगा किस दिन उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और बाकी लोग किस दिन प्रेजेंटेशन को सुनेंगे। दूसरी जो नॉर्मल डेडलाइन है दैट इज़ अगेन 13 जून, यानी आप 13 जून तक भी सबमिट करवा सकते हैं अगर उस वक्त तक प्रिपेयर ना हो। अगर 13 जून तक भी अगर आपकी प्रिपेयर नहीं होती तो फाइनल जो डेडलाइन है दैट विल बी 20 जून। इवन देन इट इज़ नॉट द फाइनल। आप लोगों का जो फाइनल पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आई थिंक 21 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर कोई ग्रुप रह गए और टाइम उनको नहीं मिला तो इवन आफ्टर योर अनाउंसमेंट ऑफ योर एग्ज़ाम भी मैं किसी टाइम पे ले लूँगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसको आपने अच्छे प्रोफेशनल तरीके से प्रिपेयर करना है, उसकी रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से करनी है। तो थोड़ा सा अगर टाइम ज़्यादा भी लग जाए तो डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन शुरू को अगर जो लोग प्रिपेयर हो जाएंगे 6 जून तक वो 6 जून को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस। अच्छा, इसमें आप लोगों के जो मैं इसी को एज असाइनमेंट मोलम में भी आप लोगों को साइन करूँगा। तो जब भी आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी इन दी डेडलाइंस उसको आपने मोलम में अपलोड करना है। मोलम में 2-3 चीज़ें आपने अपलोड करनी है। एक तो आपने पावर पॉइंट स्लाइड्स अपलोड करेंगे, दूसरी आप वर्ड के जो क्वेश्चंस होंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अपलोड करना है। और इसके अलावा आपकी जो वीडियो प्रेजेंटेशन होगी वो आपने मोलम में भी अपलोड करनी है। मोलम में जो डेडलाइन होगी दैट विल बी 20 जून, अनलेस कि किसी को अगर फर्दर टाइम चाहिए होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन ये है कि आप 20 जून से पहले पहले इसको अपनी कंप्लीट कर लें ताकि आप अपने फाइनल पेपर्स की फिर अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। उसकी फिर टेंशन आपको प्रेजेंटेशन की नहीं होगी। तो 13 जून को अगर हो सकती है तो उसको तैयार करके आप प्रेजेंट कर दें, रिकॉर्डिंग सबमिट करवा दें। सो फाइनल रिक्वायरमेंट्स जैसे मैंने आपके शेयर किया है कि आपकी पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, वीडियो प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग्स हैं, एंड जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अलोंग विद शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर है, दैट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट। बाकी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। फर्दर भी अगर किसी की क्वेरी होगी तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें वी विल डिस्कस इट फर्दर। अगर किसी को कोई आप लोगों की क्वेरी है, कोई सजेशन है, दैट इज़ ऑलवेज वेलकम, इसको भी देख लेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, इसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दें और टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।